The Lord is risen, the Lord is risen, the Lord is risen. This was the slogan in the lips of every believer and the followers of Jesus. प्रभु जीवित है, प्रभु जीवित है, प्रभु जीवित है, यही वाक्य जो है यीशु मसीह के हर एक अनुयायियों के मुंह पर था। Because that was the truth that gave them life and vigor and strength. यही तो वो सत्य था जिसने उन्हें जीवन और बल और शक्ति दी थी। In fact, if you take the Gospels and you read, अगर सच में अगर आप सुसमाचार को लेकर उन्हें पढ़ते हैं, the Gospels are written in the light of resurrection. जो सुसमाचार है वो तो वहाँ पर उसके पुनरुत्थान की ज्योति में लिखा गया है। If you read it very carefully, you will see from the beginning itself, the element of resurrection is there. अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल शुरू से ही वहाँ पर पुनरुत्थान की बात दिखती है। Jesus' birth itself is written in the light of resurrection. और यीशु मसीह का जो जन्म है वो भी पुनरुत्थान की ज्योति में ही लिखा गया है। And therefore, resurrection is the basis for Christianity. और इसीलिए पुनरुत्थान तो मसीहत की बुनियाद है। Today, all of us are because of the resurrected Lord. आज हम सब लोग तो केवल प्रभु जीवित हो उठे प्रभु यीशु के कारण ही हैं। Friends, I would like to base my thoughts with you on resurrection मेरे दोस्तों, आज मैं अपने विचारों को पुनरुत्थान के आधार पर रखना चाहता हूँ। on John chapter 20. यूहन्ना अध्याय 20 से। Keep your Bible open to John chapter 20. आप अपनी बाइबल में यूहन्ना अध्याय 20 खुला रखिए। And all that I am going to share with you, you may read it from there. और जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। As a way of introduction, I just want to tell you, परिचय के रूप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, the Jewish leaders were threatened by the fact of resurrection. यहूदी जो अगुवे थे वो यीशु के पुनरुत्थान की बात को जानकर बिल्कुल दहशत में थे। Through the generations, you will see that the Jewish leaders were most of the time lived in corrupted practices. आप पाएंगे कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक यहूदी जो अगुवे थे वो तो भ्रष्ट विधियों में जुड़े हुए थे। And time and again they were astray from the truth of God. और बार बार हम देखते हैं कि वो तो परमेश्वर की सच्चाई से दूर चले गए थे। They were habitually rebellion of the word of God. और वो आदतन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बलवा कर रहे थे। Because they were rebellion because they were under some slavery due through their history. और वो इसीलिए बलवा कर रहे थे क्योंकि वो उनके इतिहास में किसी न किसी तरह की गुलामी में थे। And they had to compromise with the political leaders of the other nations. और उन्हें दूसरे देशों के राजनीतिक नेताओं के साथ में समझौता करना पड़ता था। And therefore their conscience already pricked whenever there is a prophetic voice from the crowd. और इसलिए जब भी भीड़ में से भविष्यवाणी की आवाज निकलती थी तो उनका विवेक जो था वो तो छिद जाता था। You might have read certain passages in the Bible which tells that the Jewish community, where particularly the people who were in authority, were scared of John the Baptist. आपने खास करके बाइबल में ये पढ़ा होगा कि यहूदी जो अगुवे थे वो तो उस समय यूहन्ना बपतिस्मादाता से बहुत डरे हुए थे। They thought he was Elijah resurrected. उन्होंने ये सोचा कि ये तो एलिया है जो फिर से जी उठा है। They were more scared of John the Baptist than Jesus Christ. वो तो यीशु मसीह से बढ़कर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज्यादा डरते थे। Because John the Baptist raised his voice against authority. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अधिकारियों के विरुद्ध में अपनी आवाज उठाई थी। In a similar fashion, बिल्कुल उसी तरह से they were also scared about Jesus. वो यीशु मसीह के बारे में भी डरते थे। They presumed that Jesus will come back to life. वो ये अनुमान लगाने लगे कि यीशु फिर से जी उठेगा। Because even before the death, Jesus in many places resounded that he would come back to life. क्योंकि यीशु की मृत्यु के बहुत समय पहले ही कई जगह पर यीशु ने इस तरह से दावा किया था कि वो फिर से जी उठेंगे। And this is the most important thing that we should bear in mind. और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें अपने मन में ध्यान में रखनी है। About the Jewish consideration of resurrection. ये तो यहूदी लोग उसके पुनरुत्थान के बारे में क्या सोचते थे उस बारे में है। But very interestingly, लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात ये है, when Jesus risen from the dead, जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, he was not revengeful. वो बदला लेने वाले नहीं थे।
He did not go to those authorities and then punish them. वो उन अधिकारियों के पास में जाकर उन्हें दंड नहीं दे रहे If थे। Jesus could have, he could have. अगर यीशु चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे, But he did not take revenge. लेकिन उसने बदला नहीं लिया। He was not avengeful. वो उनसे द्वेष करने वाले नहीं थे। Jesus did not treat anyone with anger. यीशु ने किसी के साथ क्रोध से व्यवहार नहीं किया। But we find Jesus more loving towards his own people. लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु अपने लोगों से बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। Jesus in his resurrected body, यीशु ने अपनी जी उठी देह में he went about meeting common simple people. वो तो बिल्कुल सरल साधारण लोगों से मुलाकात करते थे। Like he went and met Mary Magdalene जैसे कि वो जाकर मरियम मगदलीनी से मिले and those women who came to the tomb और उन स्त्रियों से भी जो उसकी कब्र पर आए थे, and the disciples और चेलों से मिले, and those disciples who were walking to the village Emmaus. और ऐसे चेलों से जो कि इम्माउस के मार्ग पर थे। And therefore Jesus was so kind and affectionate and loving with his own people. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु थे और अपने लोगों पर बहुत करुणा और प्रेम करते थे। His resurrected presence were known only to a small circle. उसके जी उठने की जो उपस्थिति है वो केवल कुछ ही लोगों के सामने प्रकट हुई थी। And there were no advertisement or propaganda about his resurrection. और उसके पुनरुत्थान के बारे में न तो कोई इश्तिहार दिया गया, न ही कोई बड़ी घोषणा की गई। This is an amazing character of the resurrection of Jesus Christ. और यही तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बहुत ही अद्भुत ऐसा स्वभाव गुण है। His death happened openly, उसकी जो मृत्यु थी वो सबके सामने हुई, but his resurrection happens only with his own circle. लेकिन उसका जो पुनरुत्थान है वो तो केवल उसके भीतरी समूह के सामने This हुआ। is a very, very important wisdom of God. ये तो परमेश्वर का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परमेश्वर की ऐसी महत्वपूर्ण बुद्धि है। And why he did that? और उसने ऐसा क्यों किया? There is a very powerful and a strong reason for that, इसके लिए बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, which we would learn in the course of time. जिसे हम आने वाले समय में सीखेंगे। Then similarly, when Jesus resurrected from the death, और इसी तरह से जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, one thing became very strong and confirmed. एक बात तो बहुत ही मजबूती से और निश्चित रूप में हुई है। The resurrection of Jesus Christ affirmed the cross of Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने यीशु के क्रूस को साबित किया। Jesus died a very cruel death on the cross, यीशु मसीह क्रूस पर बहुत ही क्रूरता से मारे गए was approved और ये पूरी तरह से वहाँ पर खत्म हुए and established और उसे वहाँ पर स्थापित किया गया। by the resurrection of Jesus. और वो जो सारी बातें यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा साबित की गई। Therefore, resurrection is a proof for the death of Jesus Christ. और इसीलिए पुनरुत्थान जो है वो तो यीशु मसीह की मृत्यु का सबूत है। And the cross of Christ becomes so meaningful in a believer's life because of resurrection. और पुनरुत्थान के कारण ही विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह का क्रूस बहुत ही अर्थपूर्ण बन गया। And therefore it becomes an encouragement for all the disciples. और इसलिए ये सारे चेलों के लिए प्रेरणा या प्रोत्साहन बन गया। At this point the disciples were disappointed. और इस समय तो चेले जो थे वो तो बहुत निराश हो चुके थे। They never thought their master would die. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका स्वामी इस तरह से मर जाएगा And he would die such a cruel death. और वो इतनी बुरी तरह से मरेगा। And they would bury him at a very early age. और बहुत ही कम उम्र में वो उसे दफना देंगे। And they were all discouraged and disappointed. और वो सब निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। Many were depressed. और बहुत से तो पूरी तरह निराशा में डूब गए। Many were disillusioned. और यहाँ तक कि कुछ तो छोड़ देना चाहते And थे। resurrection came as an answer to all these. और इन सारी बातों के लिए पुनरुत्थान उत्तर के रूप में आया। And Jesus' resurrection came as a powerful encouragement for them. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान उन सभी के लिए बहुत ही सामर्थी प्रोत्साहन के रूप में आया। And that fact told the disciples very clearly that their master
would never cheat them. और इस सच्चाई ने उन्हें बहुत ही स्पष्ट रीति से बता दिया कि उनका स्वामी जो है वो उन्हें कभी धोखा नहीं Their देगा। master Jesus would never disappoint them. उनका स्वामी यीशु उन्हें कभी निराश नहीं करेगा At no point of time their master Jesus would not throw them into discouragement. और किसी भी समय में उनका स्वामी यीशु उन्हें निराशा में नहीं छोड़ देगा। The resurrected Lord is always there with them, और जी उठा प्रभु यीशु हमेशा उनके साथ है and He is there to support him, और वो उनकी मदद के and लिए He is है there to help them. और वो उनकी सहायता के लिए है। And then we arrive at the conclusion of this sermon. और फिर इस संदेश के अंतिम भाग में हम आते हैं। Why resurrection has no proof? क्यों पुनरुत्थान के कोई सबूत नहीं है? Why Jesus never established any proof for His resurrection? क्यों यीशु ने अपने पुनरुत्थान के लिए कोई सबूत स्थापित नहीं किए? It is because of this twin truth which is there within the resurrection pattern. और ये तो इन दो सत्यों के कारण है जो कि इस पुनरुत्थान के तरीके में पाए जाते हैं। Jesus resurrected from the dead, यीशु मुर्दों में से जी उठे, and then He had to leave the earth and go to His Father, उससे फिर पृथ्वी को छोड़कर अपने पिता के पास जाना था, and then the Holy Spirit will come upon His people. और फिर पवित्र आत्मा अपने लोगों पर आने वाला था। And this particular twin truth और ये खास करके दो जो सत्य हैं will make each disciple, वो हर एक चेले को, will make each believer वो हर एक विश्वासी को to show the world कि पूरी दुनिया को वो दिखा that सके Jesus is risen. कि यीशु जी उठे हैं। So Jesus wants to show His resurrection power through you and through me. इसीलिए यीशु आपके और मेरे द्वारा अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं। Today the world will come to know that Jesus is risen आज संसार जानेगा कि यीशु जी उठे हैं, not by His direct presence, ये उसके खास रूप में दिखाए जाने के द्वारा नहीं, but His indirect influence through me. लेकिन मेरे द्वारा उसके अनिश्चित प्रभाव के द्वारा। And God wants to bring His presence powerfully और परमेश्वर अपनी उस उपस्थिति को सामर्थ्य रीति से लाना चाहते हैं through all His children's living witness. उसके सभी संतानों के जीवित गवाह होने के द्वारा। My living witness मैं जो जीवित गवाह हूँ, will prove that Jesus is alive. इस बात को साबित करूंगा कि यीशु जीवित है। My loving presence मेरी प्रेमी उपस्थिति will prove God's love upon this earth. इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रेम को साबित करेगी। In this kind of fashion, इस तरह से you will see many missionaries went abroad, went across the countries. आप देखते हैं कि बहुत से मिशनरीज विदेशों में गए और सभी देशों के कोने कोने में गए, And everywhere they went, और हर जगह जहाँ पर वो the गए communities come to life. वो जो समाज है वो तो जीवित हो गया, They were able to see Jesus resurrected in every place, in nook and corners of the world. और वो यीशु मसीह को संसार के कोने कोने में जी उठा हुआ देख सके। And every people who came to know the Lord, और जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु को जाना, and every person who heard the gospel of Christ, और हर एक व्यक्ति जिसने यीशु का सुसमाचार सुना, they were able to experience the presence of Jesus. और वो यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव कर सके। And even today, और आज भी the Lord is present in our lives. प्रभु हमारे जीवन में उपस्थित है। And who is the proof? और इसका सबूत कौन है? And what is the proof for the resurrection of Jesus? और यीशु के पुनरुत्थान का सबूत क्या है? The proof is you and me. और इसका सबूत तो आप और मैं हैं। There is a small historical truth written outside the scripture. देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत ऐतिहासिक सत्य है जो वचन के बाहर लिखा It गया is है। in one of the Roman literatures. ये तो एक रोमी साहित्य में लिखा गया है। That small simple story tells और ये एक छोटी सी सरल कहानी बताती है that the soldiers कि वो जो सिपाही हैं and the centurion went and reported to Pilate और सूबेदार ने जाकर वहाँ पर पिलातूस को ये खबर दी that the tomb was empty. कि जो कब्र है वो तो खाली थी। And that was to the shock of Pilate. और पिलातूस ये बात को सुनकर चकित हो जाता But है। Procula, Pilate's wife, लेकिन प्रोकुला जो कि पिलातूस की पत्नी थी, expected something would happen like that. वो अपेक्षा कर रही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। And then they asked, what happened to Jesus? और फिर उन्होंने पूछा कि यीशु का क्या हुआ? And the man who reported said, और जिस व्यक्ति ने खबर दी उसने कहा, now he is let loose अब वो तो बिल्कुल आजाद हो गया है and he is found everywhere. और वो हर जगह पर दिख रहा है।
he happens to be found in everyone's life. वो तो अभी हर एक व्यक्ति के जीवन में दिख रहा है And then everybody proclaims him. और अभी सभी लोग उसका ही दावा कर रहे And हैं then everyone is able to see Jesus acting in people's life. और अभी हर कोई लोगों के जीवन में यीशु को काम करते हुए देख रहा है। Earlier there was only one Jesus. पहले तो केवल एक ही यीशु था, Now there are hundreds. अब सैकड़ों यीशु हैं। Jesus is let loose. यीशु तो अभी आजाद हो He गया is है, risen from the dead. वो मुर्दों में से जी उठा And he is living in all of us. और वो अभी हम सब में जी रहा है। Let the world see Jesus through us. यीशु को संसार हमारे द्वारा देखने The पाए। next significant thing that we need to consider दूसरी महत्वपूर्ण बात या अगली महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें गौर करना चाहिए is the truth about Jesus' resurrection. वो तो यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सच्चाई है। When we read the Bible, जब हम बाइबल पढ़ते हैं both in the Old Testament and in the New Testament, पुराने नियम में और नए नियम दोनों में there were several people who came back to life after death. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मृत्यु के बाद फिर से जी उठे। We read the miracles that happened in Elijah and Elisha's time. हम पढ़ते हैं कि ऐसे चमत्कार जो एलिया और एलीशा के समय में हुए थे, We see resurrection narratives there. हम वहाँ पर फिर से जी उठने की घटनाओं को पढ़ते हैं। And in the New Testament, और नए नियम में Jesus raised many people from death. यीशु ने भी कई लोगों को मुर्दों में से जीवित किया। And at the time of Jesus' death on the cross, क्रूस पर यीशु की मृत्यु के समय the sky became dark, जो आसमान था वो तो पूरा अंधियारा the हो गया rocks broken, और फिर चट्टानें and the तड़क sepulchres opened. और कब्रें खुल गई Many people raised from the dead, और बहुत से लोग मुर्दों में से जी and उठे they have been shown to many people. और वो बहुत से लोगों को दिखाई दिए। Then after resurrection, और फिर पुनरुत्थान के बाद the disciples were also be able to help people to come back to life. जो चेले थे वो भी लोगों को जीवित करने पाए। But there is a difference between people coming back to life and Jesus' resurrection. देखिए, लोगों का ऐसे जीवित होना और यीशु के पुनरुत्थान में बड़ा फर्क है। Others might have come to life, दूसरे जो है वो तो जीवित हो उठे, but they all had to die at some point of time. लेकिन कभी न कभी किसी न किसी समय उन सबको मरना ही पड़ा। Others came back to life, और दूसरे जो जीवित हो उठे थे, but they were only witnesses for God's power, लेकिन वो तो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के गवाह थे। but they never had a special influence upon people's life. लेकिन उन्होंने लोगों के जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं डाला। But it is a different case with Jesus' resurrection. लेकिन यीशु के पुनरुत्थान में ये बिल्कुल अलग केस थी। He came back to life वो जीवित हो गए and he enters into people's life और वो लोगों के जीवन में प्रवेश and he किए was able to transform them. और वो उन्हें बदल पाए। Jesus empowered them यीशु ने उन्हें सामर्थ्य दी and they became powerful witnesses और वो सामर्थी गवाह बन गए and they became influences. और वो प्रभाव डालने वाले बने। Jesus' resurrection is a transforming influence यीशु का पुनरुत्थान तो जीवन बदलने वाली घटना है, from generation to generation, पीढ़ी से पीढ़ी तक, and he will go on to be an influence. और वो प्रभाव डालते रहेंगे। And then Jesus' resurrection is a transforming power of the whole world, और यीशु का पुनरुत्थान तो पूरे संसार को बदलने वाली सामर्थ्य है। not only human life, केवल मनुष्य का जीवन नहीं, but also his resurrected power is able to transform the whole nature. और उसका जो पुनरुत्थान का जो जीवन है वो पूरे सृष्टि को बदल सकता And है। he has the power to recreate the whole world. और उसके पास सामर्थ्य है कि पूरे संसार को फिर से वो रचे। This is what we read in many places in Paul's writings and in the book of Revelation. हम पौलुस के लेखों में और साथ साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब में से कई जगह पर पढ़ते हैं। Therefore, we need to identify the significance in Jesus' resurrection. और इसलिए हमें यीशु के पुनरुत्थान में जो महत्व है उसे पहचानना होगा। Jesus' resurrection is very important to me. यीशु का पुनरुत्थान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है And it brings a very clear difference between और ये तो बहुत ही स्पष्ट फर्क बताता है the living God and the resurrected God. जीवित परमेश्वर में और पुनरुत्थित परमेश्वर में। The living God is above me. जीवित परमेश्वर जो है वो तो मेरे ऊपर है, The living God is outside me. जीवित परमेश्वर तो मुझसे बाहर है And the living God influences me from outside. और जीवित परमेश्वर बाहर से मुझ पर प्रभाव डालता है। But the resurrected Lord lives within me. लेकिन
पुनरुत्थित प्रभु मेरे अंदर में रहता He है, lives in my heart. वो मेरे हृदय में He रहता है, lives in my mind. वो मेरे मन में रहता He है, lives in my soul. वो मेरे प्राण में रहता है, He lives in my life. वो मेरे जीवन में रहता है, He takes control of my life. वो मेरे जीवन पर नियंत्रण करता He है, leads my life. वो मेरे जीवन में अगुवाई करता He है, uses me. वो मेरा उपयोग करता है, He takes me wherever He wants me to go. वो जहाँ चाहे वहाँ पर मुझे लेकर जाता है, And then He takes absolute control over my life. और वो मेरे जीवन पर पूरा नियंत्रण करता है, And then He uses me to execute His plan. और फिर वो मेरा उपयोग करता है कि उसकी योजना के अनुसार काम करते And जाओ। then you will see this example throughout history. और आप इस उदाहरण को पूरे इतिहास में देखेंगे, And many people came into the Lord. और बहुत से लोग प्रभु में आए, And His resurrected presence used them mightily and powerfully. और उसकी पुनरुत्थान की उपस्थिति ने बड़े सामर्थ्य रीति से उनका उपयोग किया, And they were able to do things which a common man cannot do. और वो ऐसे ऐसे काम कर पाए जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता We था। see that in missionaries' life. हम मिशनरियों के जीवन में ये देख चुके हैं। We see the whole nation transforming. हमने देखा कि पूरा देश का देश बदल We गया, see communities transforming. हमने देखा कि समाज का समाज बदल गया, We see disciples and missionaries doing great many things. और हमने देखा कि चेले और जो मिशनरीज थे उन्होंने बड़े महान They काम were किए, able to use mighty things. और वो सामर्थ्य काम कर सके, It is all because of the presence of Jesus in them. और ये केवल उनमें यीशु की उपस्थिति के कारण हुआ। Shall we bow our heads to pray? आइए प्रार्थना के लिए अपने सिर झुकाएं। Gracious Lord, our Heavenly Father, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you, Lord, for your Son Jesus. आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद। We thank you, Lord, for this your wonderful Son आपके अद्भुत पुत्र के लिए हम धन्यवाद देते हैं, who obeyed you at all points of time, जिसने हर समय आपकी आज्ञा मानी है, who surrendered his life at all points of time, उसने अपने जीवन को हर समय समर्पण किया है, who did his will. जिसने आपकी इच्छा पूरी And की, Lord, he humbled himself. और प्रभु उसने खुद को नम्र किया, And Lord, you raised him from the dead. और प्रभु आपने उसे मुर्दों में से जीवित किया, And now every knee bows down और अभी हर एक घुटना टिकता है, and every tongue confesses और हर एक जीभ अंगीकार करती है that Jesus is Lord. कि यीशु प्रभु है। And Lord, we pray और प्रभु हम प्रार्थना we करते may हैं have this blessing कि हम ये आशीष पाएं, of resurrection in us हम में पुनरुत्थान की and आशीष, in our family today. और आज हमारे परिवार में भी ये पाई जाए। And Lord, we pray प्रार्थना करते हैं प्रभु that we will be empowered by the power of His resurrection, कि हम उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा शक्ति प्राप्त करें, that we may go out कि हम बाहर जाएं and proclaim और दावा करें the name of Jesus यीशु मसीह के नाम का through our lives. हमारे जीवन के द्वारा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Jerusalem. तेरे साथ शांति रहे। जब मसीह आए हमें ले जाने को, उसकी स्तुति तुझ में देख सके। जब मसीह आए हमें ले जाने को, उसकी स्तुति तुझ में देख सके। शलोम शलोम जेरूशलेम, तेरे साथ शांति रहे। शलोम शलोम जेरूशलेम, तेरे साथ शांति रहे।
जेरूशलम जेरूशलम हम उसके लिए प्रार्थना करें। खुदा का शहर जहाँ उद्धार तुम्हारे लिए उंडेला गया। जेरूशलम जेरूशलम हम उसके लिए प्रार्थना करें। खुदा का शहर जहाँ उद्धार तुम्हारे लिए उंडेला गया। एक समय था जब तुम्हारी गलियां खुशी से गूंज रही थी। शाखें उठाए लोग चिल्लाए होसाना यीशुआ। शालोम शालोम जेरूशलम शालोम 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 जेरूशलम तेरे साथ शांति रहे। जेरूशलम जेरूशलम हम उसके लिए प्रार्थना करें। खुदा का शहर जहाँ उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। जेरूशलम जेरूशलम हम उसके लिए प्रार्थना करें। खुदा का शहर जहाँ उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। मेरे लोगों तुम सुनो यीशु की आवाज सुनो। वो आएगा तुम्हारे लिए यीशु मसीहा। शालोम शालोम जेरूशलम शालोम 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 जेरूशलम तेरे साथ शांति रहे। जब मसीह आए हमें ले जाने को उसकी स्तुति तुझ में देख सके। जब मसीह आए हमें ले जाने को उसकी स्तुति तुझ में देख सके। शालोम शालोम